So once again, a very say good morning to all of my students and welcome to the live class of School Balana. As you know that these classes are going on for last few days and people are regularly attending these classes, and I hope you are learning and you are enjoying also with this learning. As you know that these are your language classes, and these language classes are being provided by excellent Department of English Language, and we have completed 3 to 4 steps of it which we have to take against to enhance our language skill. Today we are going to take one more step, means we are going to start our next class. In today's class we will discuss about some different topics which are really important and which are not taught in any class in our schools. So just have the concentration regarding it and please try to understand that what the point is and how do we use it. Okay, if you focus just little bit, then you will be able to get a nice exposure to show this thing which we are going to discuss today. Okay, in previous class you learned how to show the future action and you learned how to show the continuity of present. Today we are going to learn something new. Okay, and as you have done in previous things, future action and continuity, please try to use in your daily routine also. Like that when our first language की I have told you like that once I would like to revise the previous बताना चाहूँगा एक बार. First one we have done about the future action. Okay, second one we have learned about how to show continuity of present. Continuity of present. Future action and continuity of present we have learned. Here the first language key, what do we have? We will get ga, ge and gi. Then what do we have to use? Will and shall plus verb first form. Okay, I hope this is clear to you everyone. Okay, if we get ga, ge, gi in a end of sentence in first language or in Hindi, then we have to use will, shall plus verb first form. In next class we learned about that how to show the continuity of present. In that we will get some different thing in our first language. If we talk about, we will get रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ. Okay, then what do we have to use in our target language in English? In second language we use is am, are plus verb first plus I and G. Okay, these things you have learned. Okay, simple thing we have to focus all these things. First language की ga, ge, gi, then close your eyes and just use will, shall plus the first one. Okay, continuity, if you get raha hai, rahi hai in first language in end of sentence, then just is, am, are plus verb first plus I and G. I hope so these points are clear to you. Let's move to the next point which we have to start today. Okay, in today's point we will learn something different which is really important and which we use more than 50% in our daily routine, in our conversation, in our communication. So that it is really important. In today's concept we will learn our concept number 3rd. In this concept we are going to learn about how to show compulsion and obligation. We will learn about compulsion and obligation. Compulsion क्या होता है? Very simple बेटा, मजबूरी. Okay, obligation कर्तव्य. मजबूरी क्या होती है? We often show our compulsion, हम अपना मजबूरी दिखाते हैं. Okay, कि भी मुझे ये काम करना है. Okay, और करना पड़ता है. Like for example कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट अगर आजकल की बात करें, ड्यू टू लॉकडाउन कि कुछ काम नहीं होता है इसीलिए पूरा दिन घर पे रहना पड़ता है. अदर डेज इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन डेज, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, जो भी हमारा रूटीन होता है, कॉलेज जा सकते हैं. ओके, बट नाउअडेज इट्स कंपल्सन दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेन एट होम. ओके, ऑब्लिगेशन क्या है? कर्तव्य. लाइक कि हमें काबिल बनना है. ओके, हमें पेरेंट्स को उनकी डिजायर्स को फुलफिल करना है. दैट्स आवर ऑब्लिगेशन. ओके, हमें अच्छे से पढ़ना है. ओके, हमें दूसरों की रेस्पेक्ट करना है.
ओके, कंपल्सन अगर दूसरी बात करें तो मुझे यानी कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ओके, मोर एग्जांपल्स कि भाई मुझे लेट तक पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम्स क्लोज है। लाइक दिस these are your compulsion. Another example if we talk about, और हम बात करें कि भाई मुझे रोहन के लिए वेट करना पड़ता है। ओके, दैट इज आल्सो कंपल्सन। मींस हमारी यहाँ पे हिंदी में पहचान क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज की हियर? दिस इज करना है और करना पड़ता है। ओके, हिंदी में हमारी पहचान क्या है? इन हिंदी और यू में से फर्स्ट लैंग्वेज की क्या है? करना है और करना पड़ता है। एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि लाइक मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ओके, अनदर एग्जांपल्स लाइक मुझे उसे पीटना है। अंडरस्टूड? मुझे होमवर्क करना है, ऑफिस के लिए तैयार होना है। अंडरस्टूड? मुझे खाना नहीं खाना है। सो लाइक दैट करना है, करना पड़ता है। दिस इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज की, हमारी हिंदी की जो की है वो ये है, करना है, करना पड़ता है। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस थिंग इन सेकंड लैंग्वेज इन इंग्लिश? कंपल्सन ऑब्लिगेशन को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? We have very simple keys and some suffixes to express this compulsion and obligation in English. English में कैसे शो करते हैं बेटा? Very simple. We have to use here some keys like has to, or you may say have to plus verb first form. Understood? Has to or have to plus verb first form. Where do we have to use? When we find करना है, करना पड़ता है। और पहचान क्या है? किसके लिए यूज करना है? To show compulsion and obligation. कंपल्सन और ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हमें क्या यूज करना है? Has to and have to. Is that clear? फर्स्ट लैंग्वेज की क्या है? करना है, करना पड़ता है। सेकंड लैंग्वेज की has to and have to. Okay? Now we have two things. हमारे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। has to and have to। अब बात आती है कि has to हम कहाँ यूज करेंगे और have to का यूज हम कहाँ करेंगे। ओके, these are very simple बेटा। has to कहाँ यूज करते हैं? You may have learned in your previous classes, आपने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा और स्कूल में भी पढ़ा होगा जब आपके टीचर्स पढ़ाते हैं। has to is different thing and have to is different thing। Where do we have to use it? कहाँ यूज करना है? has to का यूज करते हैं हम, we use has to at different place and have to at different place। Like has to is used with he, she, it and singular, singular name, singular person। इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? has to यूज करेंगे। and remaining things जो बाकी बचे हैं उनके साथ क्या यूज करेंगे? have to यूज करेंगे। like I, we, you, they and plural। I, we, you, they and plural sense, इनके साथ क्या यूज करेंगे? have to। अंडरस्टूड? एक बार फिर से बताता हूं। टू शो कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन की यूज और कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, और इसमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज की क्या है? पहचान क्या मिलेगी? करना है, करना पड़ता है। ओके, लाइक मुझे खाना है, ओके, उसे खेलना है, ओके, तुम्हें जाना है, लाइक दिस। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? has to and have to plus verb first form। ओके, has to कहाँ यूज करते हैं? we use has to with he, she, it and any singular। singular यानी कि रोहन, पंकज, प्रिया, पापा, मम्मा, ब्रो, सिस, यानी कि एक, जब सिंगुलर सेंस हो। ओके, और have to कहाँ यूज करते हैं? इसका बिल्कुल अपोजिट, I, we, you, they and plural, यानी कि एक से ज्यादा जब हो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? have to। Is that clear? Okay, very fine. Let's move to the next point. अभी हम एक सेंटेंस बनाएंगे जिससे कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। Let's make some sentences to clear this have to and has to।
बेटा वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू सी द फर्स्ट लैंग्वेज की, हमें केवल फर्स्ट लैंग्वेज की देखना है, ओके। क्योंकि हम किस लिए यूज करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की, क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए ही फर्स्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। सो लेट्स मेक सम एग्जांपल, लाइक मुझे खेलना है, ओके, मुझे खेलना है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो इट मींस इसका क्या आएगा, आई। अभी मैंने आपको बताया था आई के साथ क्या यूज करते हैं, हैज टू और हैव टू, जस्ट बिफोर आई टोल्ड, अभी बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। हैज टू कहां यूज करते हैं, वी यूज हैज टू विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर, और हैव टू कहां यूज करते हैं, विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, ओके। हाँ, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, आई के साथ क्या यूज करेंगे बेटा, वेरी नाइस, सिंपल, वी हैव टू यूज हैव टू, ओके। आई हैव टू को नहीं छोड़ना है, इट इज द सेम, एक ही वर्ड है ये मान के चलिए, ओके। आई हैव टू खेलना क्या होता है, प्ले, वेरी नाइस, दिस इज आवर सेंटेंस, आई हैव टू प्ले। यानी कि जब हमें ये एक्सप्रेस करना है कि मुझे खेलना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई हैव टू प्ले, ओके। बोलना है, आई हैव टू स्पीक, ओके। जाना है, आई हैव टू गो, तुम्हें जाना है, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू की किसके साथ यूज करते हैं, हैव टू के साथ, ओके। यू हैव टू गो, ओके। हमें जाना है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी यूज कर देंगे, वी हैव टू गो, ओके। उन्हें जाना है, इट मीन्स दे हैव टू गो। इज दैट क्लियर, समझ आया, ओके। दे हैव टू गो। मोर एग्जांपल्स, अभी हमने यही यूज किया है, आई, वी, यू, दे, ओके। अभी प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा, ओके। लाइक रोहन और पंकज को सोना है, ओके। रोहन और पंकज को सोना है, इट मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो किसमें काउंट किए जाएंगे, प्लूरल में काउंट किए जाएंगे। और प्लूरल के लिए हमारे पास क्या है, हैज टू और हैव टू, हैज टू यूज करेंगे, नाउ वी हैव टू यूज हैव टू शो द प्लूरल सेंस, ओके। इट मीन्स रोहन एंड पंकज विल बी एज इट इज, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन, ओके। रोहन एंड पंकज, वी विल राइट हियर रोहन एंड पंकज, क्या करना है, सोना है। ना है आ गया है, ना है और ना पढ़ता है, इट मींस वी हैव टू यूज हैज टू, हैव टू। और अब प्लूरल के लिए हमें क्या यूज करना है, हैव टू यूज करना है, ओके। रोहन एंड पंकज हैव टू क्या करना है, सोना है। सोना क्या होता है, स्लीप, वेरी नाइस, गुड, समझ आया। यानी कि एक से ज्यादा हो तो भी हम क्या यूज करेंगे, हैव टू यूज करेंगे। मुझे सोना है, रोहन और पंकज की जगह क्या आ जाएगा, आई हैव टू स्लीप। अब मेरे साथ बोलना है, ओके। लाइक तुम्हें सोना है, तुम्हें सोना है यानी कि आपके बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तुम के बारे में बात कर रहे हो, इट मींस यू, यू के साथ क्या यूज करते हैं, हैव टू।
You have to sleep. Okay? तुम्हें जाना है. Good. Make it. You have to go. Okay? खेलना है. You have to play. बोलना है. You have to speak. टीवी देखना है. देखना क्या होता है? Watch. और क्या देखना है? टीवी. Simple. You have to watch TV. एक बार फिर से बोल रहे हैं. You have to watch TV. This is sentence. Okay? हाँ, हमें पढ़ना है. पढ़ना क्या होता है? स्टडी भी होता है. ओके? और रीड भी होता है. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज. ओके? हमें पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है. ओके? वी यानी कि प्लूरल, एक से ज्यादा वी के साथ क्या यूज करते हैं? हैव टू यूज करते हैं. वी हैव टू, पढ़ना क्या है? रीड. ओके? क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर. मुझे पढ़ना है. I have to read newspaper. उसे पढ़ना है. This you have not learned. ये नहीं सीखा है. ओके? हमें पढ़ना है. We have to read newspaper. उन्हें पढ़ना है. They have to read newspaper. Bro और sis को पढ़ना है. Bro and sis have to. यानी कि एक से ज्यादा हो गया ना, जैसे पंकज और रोहन. ओके? So like that. Bro and sis have to read newspaper. Okay? आप दोनों को पढ़ना है. You both have to read newspaper. Okay? Another example कि हमें खाना खाना है. We have to eat food. Okay? Another example मुझे खाना है. Good. अब आप बोलेंगे. मुझे खाना है. I have to eat food. उसे खाना है. This you have not learned. That will be discussed tomorrow. Today we are discussing this about have to. Okay? तुम्हें खाना है. You have to eat food. उन्हें खाना है. They have to eat food. So like this, as I have told you these sentences, you also have to do the same thing. Okay? As you have done previous, जैसे कि आपने सीखा है कि मैं खाना खाऊंगा. गागे के लिए क्या यूज करते हैं? will यूज करते हैं. ओके? खाऊंगा. I will eat food. ओके? और खाना है. I have to eat food. ओके? खा रहा हूं. Good. In last class you have learned. ओके? I am eating food. खाऊंगा. I will eat. खा रहा हूं. I am eating. खाना है. I have to eat food. Like this. All these sentences you write one sentence. एक सेंटेंस आप नोटबुक में लिखिए कोई भी. खाऊंगा और उस पे सभी वेरिएशंस डाल सकते हैं आप, लेकिन उसको लिखना नहीं है, उसको बोल के प्रैक्टिस करना है. ओके बेटा? आवर कम्युनिकेशन इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम अपनी बातचीत की बात करें, सो दैट इज 90% oral. We use very rare in the matter of writing and reading. हम भाषा का बहुत ही कम यूज करते हैं लिखने और पढ़ने में. जब भी हमें किसी से कम्युनिकेशन करना होता है, we communicate with the help of tongue and ears. In that sense, you have to practice maximum by speaking. बोल के practice करना है. You may practice with the help of this video, okay? And if you do not have, time to see this video, so you can practice while working also with your friends. आप काम करते हुए भी, पढ़ते हुए भी अपने friends के साथ practice कर सकते हो. Means you have to practice maximum by speaking. आपको ज्यादा से ज्यादा बोल के practice करना है. Okay? Previous classes, if you have not seen, इससे पहले की classes अगर आपने नहीं देखी हैं, so you can see. Okay? And I hope so these points are clear to you about it. इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. In next class we will discuss about has to, and I hope so today it's enough for today's class. So that's all for today. Have a good day. Be safe. Stay at home. Bye bye. Thank you.